Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashcha prayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiki नाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter number 6, entitled Conversation between Narad and Vyasadeva. Verse number 23. सत्सेवया दीर्घयापि सर्ग सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढमतिः हित्वा वद्यम् इमं लोकम् गन्तामद्यनात् जनतामसि.
सत्सेवया अधिदीर्घ्यापि जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जनतामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जनतामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढा मतिः हित्वा गन्तामज्जनतामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जनतामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जनतामसि. Word to word, Satsevaya, by service of the absolute truth. Adirgaya, for some days. Api, even. Having a jata, having attained. Mai, unto me. Drida, firm. Matihi, intelligence. Hitva, having given up. Avadyam, deplorable. Imam, this. Lokam, material worlds. Ganta, going to. Mat Janatam, my associates. Asi, become. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. Serving the absolute truth means rendering service unto the absolute personality of Godhead under the direction of the bona fide spiritual master, who is a transparent via medium between the Lord and the neophyte devotee. Then if the neophyte devotee has no ability to approach the absolute personality of Godhead by the strength of his present imperfect material senses, and therefore, under the direction of the spiritual master, he is trained in transcendental service of the Lord. And by such training, even for some days, the neophyte devotee gets intelligence in such transcendental service, which leads him ultimately to get free from perpetual inhabitation in the material worlds and to be promoted to the transcendental world, to become one of the liberated associates of the Lord in the kingdom of God. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha
श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा बंदो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। Reading the translation once again. By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. Hare Krishna. First of all, thank you all once again for welcoming me here. Otherwise, I never set foot out of my home, especially never to a holy place like this. I am thoroughly unqualified, not just unqualified, but rather disqualified because I never come in contact with Srimad Bhagavatam. And because of your mercy, I am regularly coming in touch with the Bhagavatam. So I pray to all of you to please bless me that I may be faithful to the parampara in whatever I speak today. I will speak mostly in English, but I will also speak in Hindi. Okay, so that I can understand myself. Hare Krishna. So अभी हम जिस सत्र पर हैं उसमें नारद जी और व्यासदेव के बीच में एक वार्तालाप वो चल रही है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नॉर्मली हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो किसी को शायद कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस भागवतम में ऐसे वार्तालाप हैं जिससे हमको हर पल हर शब्द से कुछ सीखने को मिलता ही है। अभी जिस श्रृंखला में हम अभी चल रहे हैं उसमें नारद मुनि अपने बारे में बताते हैं कि वो जब एक बार मेडिटेशन कर रहे थे तब उनके सामने परमात्मा का दर्शन हुआ। द लॉर्ड हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड बिफोर नारद। बहुत ही जल्दी उनका दर्शन हुआ और उतनी ही जल्दी वो अदृश्य भी हो गए और ये देखकर नारद जी बहुत ही हताश हो गए। तो उस समय भगवान ने उन पर कृपा दिखाई और उन्होंने शब्द के द्वारा उनको एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, देखिए आपके पास उतनी योग्यता थी ही नहीं, उतना प्यूरिटी ही नहीं था कि हम आपके सामने दर्शन देते, परंतु हमने दर्शन इसलिए दिया ताकि आपकी लालसा हमें प्राप्त करने की बहुत बढ़ जाए। So he wanted to increase the hankering so that Narad would continue in this process, desirous of meeting the Lord again. फिर से भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा जो है बहुत अधिक बढ़ जाए। इस हेतु उन्होंने भगवान ने कुछ पल के लिए उनको दर्शन दिया। तो अब
उसके बाद वो आश्वासन ये देते हैं कि आप ये क्रिया में आप अगर संलग्न रहेंगे तो उसके बाद आपको एक स्थिर बुद्धि की प्राप्ति होगी और धीरे धीरे आप मेरे भगवत धाम में मेरे ही एक एसोसिएट के रूप में आप वहां पे आपको एंट्री मिलेगी. सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग assurance that Narad Muni gets from the Lord in the form of the sound vibrations. So now let us try to see how this is related with the previous shlokas and how this is related with the future of a devotee itself. तो हम सबसे पहले तो देखते हैं श्लोका नंबर 15 में 15 नंबर में प्रभुपाद ने परपोर्ट में क्या बोला है. So the translation of verse number 15, after that under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest I began to meditate upon the super soul situated within. Using my intelligence sorry, as I had learned from liberated souls. So Prabhupada writes, this consciousness is firmly developed by a devotee who has rendered loving service unto the Lord by carrying out the orders of the spiritual master. तो ध्यान दें, तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि उनको इस तरह का जो स्थित प्रज्ञ है वो कब प्राप्त हुआ, जब उन्होंने भगवान की सेवा करी. लेकिन कैसे? उन्होंने अपने गुरु महाराज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका पालन करने के द्वारा. तो मतलब इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स टू द सर्विस टू द लॉर्ड. मतलब अपने जो गुरु महाराज हैं उनकी जो भी कथन है, उनके जो भी उपदेश हैं, उनको मानने के द्वारा उन पर हम अगर चलते हैं उसके द्वारा ही भगवान की भक्ति हो जाती है. तो ये, और इस श्लोक में भी यही कहा गया है. He says that by the service of the absolute truth, और उसके लिए प्रभुपाद परपोर्ट में कहते हैं serving the absolute truth means rendering service unto the absolute personality of Godhead under the direction of the bona fide spiritual master. मतलब जब हम जो अपने गुरु के जो उपदेशों के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब हमें एक स्थिर या स्थित बुद्धि प्रदान होता है हमें. तो but in Bhagavad Gita we also learn in chapter 2 verse 41 vyavasayatmika buddhi ekah kurunandana बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम. So इसमें here the word vyavasayatmika buddhi is taken in the purport by Srila Prabhupada and also by the acharyas. तो Srila विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस व्यवसायत्मिका बुद्धि के विषय में बोलते हैं. व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब जो बुद्धि स्थिर है, जो डिटरमाइंड है, जो इधर उधर मतलब घूमती नहीं रहती. तो उसका वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परिभाषा ये देते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु के वचन को अपने जीवन का उद्देश्य मान लेता है, who takes the words or orders of the spiritual master as his life and soul. So that is vyavasayatmika buddhi. So here fixed intelligence is taken as taking the guru's words to your heart and soul, as though this is the purpose of life itself. And even Srila Prabhupada, when he translates, he takes a particular shloka which says Shraddha Shabde Vishwasa Kahe Sudrita Nishtaya Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Haya. So what that means is Srila Prabhupada says, Srila Prabhupada ये कह रहे हैं कि श्रद्धा का क्या अर्थ है. श्रद्धा का मतलब यह है कि हमें यह विश्वास है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा ही हमें वी विल गेट द परफेक्शन ऑफ लाइफ, हमें जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होगी केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही. सो दिस इज द श्रद्धा. नाउ वी आर हैविंग फ्यू थिंग्स इन पैरेलल एंड दिस लुक्स लाइक अ सर्कल. गुरु के उपदेश का पालन किया, गुरु क्या कह रहे हैं कि आप कृष्ण की भक्ति करो,
कृष्ण की भक्ति अगर हम करते हैं तो हमें स्थिर स्थितप्रज्ञ की प्राप्ति होती है। इफ आवर इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड देन व्यवसायत्मिक बुद्धि का अर्थ यह है कि हम गुरु के उपदेशों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। मतलब गुरु के आप उपदेश का पालन करते हो तो वापस गुरु के उपदेश का पालन करने का अवसर मिलता है। ऐसा लगता है कि एक साइकिल है कि हम जहां से शुरू हुए वहीं पे वापस आ गए, ठीक है। लेकिन ये इस टाइप का सर्कल है जहां पे स्तर अलग हो जाता है। आप समझ रहे हैं, यहां से हम साइकिल शुरू हुआ लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते हमारा स्तर अलग हो गया, हम वापस उसी बिंदु पर पहुंचे लेकिन वो वही बिंदु नहीं है, स्तर अलग है। तो इसको एक स्पाइरल कहते हैं, अपवर्ड स्पाइरल ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, राइट। सो हाउ डज दिस टेक प्लेस? सो लेट अस फर्स्ट सी दिस sequence of events and then we will see the missing links and how this is translating into becoming an associate in the spiritual world. So associate is parshad. तो भगवान का ही पार्षद आध्यात्मिक जगत में बनने के लिए इस श्लोक द्वारा क्या मिसिंग लिंक है वो हम देखेंगे अभी कि तो थोड़ा विश्लेषण करेंगे। तो उसके पहले तो आई विल जस्ट टेल, आई विल रिपीट द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में क्या है, हमने गुरु की सेवा की कुछ दिन के लिए, और गुरु की सेवा करने पर गुरु क्या करते हैं, उसी श्लोक में 2.41 में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु जो होता है वो एक कनिष्ठ जो भक्त आता है उनके शरण में, उसके विषय में वो जानते हैं, उसके क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, और उसको उसके जो चरित्र है या जो योग्यता है उसके अनुसार वो एक काम में लगाते हैं। और वो कैसा काम होता है, भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है। तो जब वो भगवान की सेवा में जब वो लग जाता है तब उसके बाद भगवान उसको क्या प्रदान करते हैं, इस श्लोक के द्वारा कुछ ही दिन अगर वो ऐसा भगवान की सेवा करता है तो उसको क्या मिलता है, he gets firm and fixed intelligence, उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल स्थित हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसा अगर बुद्धि मिलता है तो व्यक्ति गुरु के ही उपदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। तो अभी इस चीज में, और जब वो ऐसा हो जाता है तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर ऐसा करता है तो वो तुम इस भौतिक जगत, और स्पेशली एक वर्ड यूज करते हैं डिप्लोरेबल, मतलब हाउ डू ट्रांसलेट इन हिंदी, जो या यूं कह लीजिए, हाँ, घिनौना, ये भौतिक जगत को बिल्कुल ही घिनौना कहते हैं, और इस जगत से निकलकर उसको आध्यात्मिक जगत में भगवान का पार्षद के रूप में एक अवसर मिलता है, तो वहां पे वो पहुंचता है। तो कैसे यहाँ पे ये जर्नी है, वो अपने गुरु के उपदेशों का अपने जीवन का उद्देश्य मान के चल रहा है, और वहां पे कुछ दिनों के बाद, क्षणों के बाद, सालों के बाद, या हो सकता है लाइफ टाइम्स के बाद वो वहां पे पहुंचे और भगवान का पार्षद बनने का उसे अवसर मिले। लेकिन ये जो जर्नी है उसका भी हम विश्लेषण करेंगे कि ये यहाँ पे तो गैप दिया हुआ है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी कोई आईआईटी में उसको एडमिशन मिलता है, लोग कहते हैं इसकी तो लाइफ बन गई। लेकिन आईआईटी में एडमिशन मिलने में और लाइफ के बनने के बीच में जो जर्नी है उसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं करता है, क्या क्या करना पड़ता है उस स्टूडेंट को, हाँ, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं करता है। वो वर्णन भी हम यहाँ पे देखेंगे प्रभुपाद की बुक्स की सहायता से ही। तो देयर वोंट बी एनी स्पेकुलेशन हियर। सो देयर आर नाउ टू लेवल्स ऑफ एनालिसिस दैट वी विल नाउ डू। पहला एनालिसिस ये है कि एक कनिष्ठ जो भक्त है वो गुरु की बातों को माने ही क्यों। What is the motivation for a neophyte devotee or even a non-devotee to listen to the words of a guru in the first place? So this is the first analysis that we'll do. And the second one is, how does a person who is fixed in intelligence, having vyavasayatmika buddhi, following the instructions of the spiritual master as his life and soul, how does this person go to the spiritual world, leaving the deplorable material world, and getting to participate in the Lord's activities as an associate of the Lord? तो इसका भी हम विश्लेषण करेंगे कि वो इस जगत से आध्यात्मिक जगत में जाकर भगवान की का पार्षद कैसे बनता है, केवल व्यवसायत्मिका बुद्धि की प्राप्ति पर। तो ये दोनों हम देखेंगे। सबसे पहले we will do a crash course of DYS. Okay, so in very few words, discover yourself करेंगे हम। तो सबसे पहले जो नॉर्मल जो व्यक्ति है वो भगवान के प्रति उसके क्या विचार होते हैं,
पहली बात तो दखल अंदाज करते ही नहीं भगवान उसके जीवन में, जो उसको करना है वही करते रहते हैं। उसके बहुत सारे प्लान्स होते हैं और उस प्लान्स की सफलता हेतु वो समझता है कि भगवान एक लिंक है। बहुत सारी सामग्री लगती हैं सक्सेस के लिए, शायद भगवान भी एक ऐसे एक सामग्री हो। अगर उनको मैंने हटा दिया तो हो सकता है मुझे सक्सेस ना मिले, तो चलो उनको भी मैं अपने जीवन में एक स्थान दे देता हूं। सो नाउ अ पर्सन थिंक्स दैट बाय पेटिशनिंग टू गॉड in the form of a personal prayer or in the form of officiated rituals, ठीक है, या तो कोई मतलब पूजा, किसी पुजारी को बुला के उसने कोई पूजा कर दी, कोई यज्ञ कर दिया, या भगवान के सामने उसने प्रार्थना रख दी कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो भगवान उसको प्रदान करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये प्राय अंडरस्टैंडिंग है लोगों का कि भगवान का मेरे जीवन में यही उपयोग है कि कभी कभी मुझे अपने योजनाओं में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, तो भगवान मेरी मदद करते हैं इस प्रकार। ओके नाउ, लेकिन प्रार्थना करने के लिए भी आपको जानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति है कौन। आप किसी के पास जाके कम से कम थोड़ी बहुत प्रशंसा करेंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी, तभी ना प्रशंसा कर पाएंगे। तो उसको भगवान के विषय में थोड़ी बहुत तो जानकारी चाहिए। तो उससे जानकारी कहाँ से मिलेगी? जानकारी किसी भी विषय पर, अब यहाँ पे डिवाइस आ जाता है, कैसे मिलती है हमें? या तो हम उसको अपने इंद्रियों द्वारा हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो दिस इज प्रत्यक्ष प्रमाण। एक्चुअली प्रत्यक्ष है, प्रमाण तभी बनता है जो शब्द से मैच करता है, लेकिन प्रत्यक्ष है ये। अपने इंद्रियों द्वारा ही ना हम किसी भी विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत सीमित हैं और बहुत गलतियां भी करती हैं। So now people say that why don't we magnify and refine the sense, the things that we get through the senses? इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम जो भी हम प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को जो प्रदान करते हैं, उसको हम मैग्नीफाई क्यों ना कर लें? ठीक है, हमें छोटे अक्षर दिखते नहीं है, लेंस लगा लो, देख लो, अब दिख जाएगा। बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस, एंड द प्रॉब्लम कैन बी पैराफ्रेज्ड बाय द लॉ ऑफ प्रिसिशन। जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है, वहां पे मजाक में हम लोग कहते हैं मेजर विद अ वर्नियर, मार्क विद अ चॉक, कट विद एन एक्स। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब हमने बहुत ही बारीकी से हमने नापा, लेकिन फिर मार्किंग किया चौक से, जिसका कम से कम 2 से 5 मिलीमीटर का थिकनेस होता है। फिर उसको काटा किससे? एक हथौड़ी से। ओके, तो नॉट हथौड़ी, व्हाट इज दैट? कुल्हाड़ी से। ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ प्रिसिशन। मतलब आप मैग्नीफाई कर रहे हैं, लेकिन ले तो अपनी इंद्रियों से रहे हैं वापस। या एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे कंपनी में क्या होता है, एक वाटर डिस्पेंसर था। तो वाटर डिस्पेंसर में बिस्लेरी का बॉटल रखते हैं ऊपर से उल्टा करके, और उसके अंदर से टैप खोलो आपको, लेकिन पानी कैसे पीते हैं? ऐसे 1.6 पॉइंट, कैन यू प्लीज गेट इट बैक फॉर मी? वापस परपोर्ट यूज करना है इसलिए चाहिए हो। तो वो क्या करते हैं, उस टैप को खोलते हैं, लेकिन अपने हाथ से नहीं पीते पहले जैसे पीते थे। वो एक गिलास लेते हैं स्टील का, उसको नीचे भरते हैं, और गिलास को कैसे धोते हैं? वही टैप के पानी से, जिसको वो डायरेक्टली नहीं पी रहे हैं, बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, लेकिन गिलास को धो रहे हैं, और उस बिस्लेरी के पानी को गिलास में भर रहे हैं। और उस गिलास को किस में धोया? उसने टैप के वाटर से धोया, और उसकी बूंदे हैं चारों तरफ। तो जो हु इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ इन्फेक्शन will abhor at this kind of a suggestion. Okay, so this is what happens। आप इंद्रियों, मतलब इंद्रियों को जो आप दे रहे हैं, उसको आपने मैग्नीफाई तो कर लिया, वापस इंद्रियों से ही ले रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रत्यक्ष। दूसरा, कैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो हम सोचते हैं उसके बारे में, अनुमान लगाते हैं, तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो इसमें तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जिस पर हम चर्चा, मतलब ब्रेन के अंदर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस सारे जो पदार्थ हैं वो अपने इंद्रियों द्वारा ही प्राप्त हुई है। तो हमारा डेटा ही खराब है। ठीक है, तो उसके बाद जो हम अनुमान करते हैं तो नेचुरली खराब ही होगा। और दूसरा, वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग निष्कर्ष निकलेगा। कोई ये कहेगा, कोई दूसरा कहेगा, और समाज में अधिकांश लोग जो बोलेंगे उसको माना जाएगा थियोरी। और इसमें और बड़ी बात यह है कि वो थियोरी कभी कभी बदल भी जाता है। कुछ क्षण बाद ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं, ये ठीक है, तो उस थियोरी को निकाला जाता है और नया थियोरी आ जाता है हमारे लाइफ में। तो ये अनुमान का तो कोई यही नहीं है। देयर इज नो
you can say it doesn't have an astitva only, it doesn't have a status at all. So there is no point in following Anuman Praman. It is subjective, it is prone to being vetoed out by the majority view. ठीक है, तो और बाय द वे जो भी हमारे थियरीज चल रही हैं वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक उनको मानते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि वैज्ञानिकों के एक समूह ऐसा भी है जो उसको मानता नहीं है। वो मेजोरिटी पे चलता है असम्पशन, पूरा सारे थियरीज मेजोरिटी पे चलते हैं और पीरियोडिकली वो रिजेक्ट भी होती है, नए थियरीज भी आती हैं। अब तीसरा क्या है, पूछ लो आप। तो आप भगवान से शायद नहीं पूछ पाओ क्योंकि हम भगवान के विषय में ही जानना चाहते हैं, तो कहाँ से कैसे पूछें यही नहीं पता। तो फिर क्या करते हैं, जो गुरु हैं जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे पूछते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम परंपरा में आने वाले जो बोनाफाइड गुरु हैं उन्हीं के पास क्यों जाएं, उन्हीं से क्यों पूछें। तो इसका भी बहुत नेचुरल सा एक आंसर ये है कि अगर ए को बी के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, मुझे जय प्रभु के बारे में जानकारी लेनी है, तो जय प्रभु अपने विषय में मुझे बताएंगे ही क्यों जब तक मैं विश्वसनीय ना हो जाऊं। till I become trustworthy, till I win his trust, why should he disclose his personal details to me? अपने विषय में बताएंगे ही क्यों। मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ, जय प्रभु आप बताइए सबसे पहले आपने कौन सी गलती करी, वो क्यों अपनी गलती को बताएंगे, अपने टीचर को नहीं बताया उन्होंने कभी। राइट, सो nobody will disclose his personal confidential matters to any person just like that, ऐसा तो कोई नहीं बताएगा। तो इसका मतलब मुझे उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, I have to win his trust, I have to become trustworthy। वो कैसे होगा, जब मैं उनके कथानुसार चलूंगा और वो जो भी बात करेंगे वो मैं करूंगा और बार बार उनकी सेवा करूंगा और उनको प्लीज करूंगा, तभी ना वो मुझ पर भरोसा करेंगे और तभी मुझे जब मैं पूछूंगा तो वो बताएंगे। सो लाइक दैट, व्हाट इज द परंपरा सिस्टम? I win the trust of B and B wins the trust of C and C wins the trust of D and so on till a person wins the trust of God. He becomes close to God, he serves God, he pleases God, and then God reveals his personal details about who I am, how can I be approached, how can I be petitioned, if we want to stick to that level, whatever. But unless a person comes in parampara, it is unlikely that he will get any idea at all about God beyond his personal figment of imagination. तो जब तक हम परंपरा द्वारा भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हमें भगवान के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। सो दिस इज द रीजन व्हाई अ पर्सन, और यहाँ पे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो इसमें जो तीन जो चीजें हैं प्रणिपात, सो श्रीमान राधेश्याम प्रभु ये कहते हैं प्रणिपात से क्या होता है, हम अपने ईगो को प्यूरिफाई कर देते हैं। ओके, जब हम किसी के समक्ष हम सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो अहंकार है उसको हमने उसके चरण कमलों पर रख दिया है, तो ये हमारे अहंकार का शुद्धिकरण होता है इससे। उसके बाद परिप्रश्न से हमारे बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं हमारी शंकाएं दूर होती हैं, जो हमें उससे जो उत्तर मिलता है उससे हमारा बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। और सेवा से हमारे मन और उसके जो फ्रेंड्स हैं 5 जो इंद्रियां हैं उनका शुद्धिकरण होता है सेवा द्वारा। तो यही है जो जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं परंपरागत, तो वो गुरु हमें सेवा में तुरंत लगा देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक बच्चा है स्कूल में जाता है, ABCD लिखता रहता है पूरा दिन, उसके फ्रेंड्स भी ABCD लिखते रहते हैं, वो बातों भी जब करते हैं एक दूसरे के साथ, आज क्या पढ़ा ABCD, हमने भी ABCD पढ़ा। ABCD के द्वारा उनको क्या लाभ प्राप्त करने वाला है वो शायद 10th तक समझ में नहीं आता होगा, उसके बाद लगता है अरे हमें तो फंसा दिया इसमें। तो जैसे गुरु हमें सेवा किसी भी सेवा पे लगाते हैं, हमें कर लेना चाहिए, शायद हमें पता ना हो कि इस सेवा का और भगवान के पार्षद बनने में क्या संबंध है, शायद हमें कभी समझ में ना आए, बस चुपचाप वो सेवा करना है, उससे हमारा शुद्धिकरण होगा और बाद में जो ज्ञान देंगे वो बैठेगा हमारे दिल में। नहीं तो हम अपने जो भरा हुआ घड़ा है उसके द्वारा उसको रिजेक्ट कर देंगे और गुरु बदलेंगे, फिर नेक्स्ट गुरु बदलेंगे और फिर कहेंगे हम स्वयं अपने गुरु बन जाते हैं, नोबडी इज अप टू माई मार्क। तो ऐसा हम वी कैन कम टू दिस ऑल्सो। सो इससे ये होता है, नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाई अ neophyte devotee should take shelter of a guru and why he should carry out the orders of the guru.
अब गुरु क्या आदेश देते हैं? गुरु भगवान की सेवा में ही लगाते हैं डायरेक्टली. Okay, so now we come to the third, the second analysis. तो पहला एनालिसिस जो गैप था हमारा, फ्लो चार्ट कहां से शुरू हुआ था? जो एक कनिष्ठ भक्त है वो गुरु की सेवा करता है, और गुरु की सेवा क्या है? भगवान की सेवा में लगाते हैं. और भगवान की प्रेम पूर्वक जब कोई सेवा करता है तो भगवान स्वयं उसको एक स्थित बुद्धि देते हैं, व्यवसायत्मिक बुद्धि देते हैं, जिसके द्वारा वो फिर गुरु की ही आदेशों का और पालन करना अपना जीवन का उद्देश्य समझ के चलता है. तो पहला वाला हमने देखा कि ये गुरु का उपदेशों का पालन करना ही क्यों चाहिए कनिष्ठ भक्त को या अभक्त को भी, जिसको बहुत सारी कामनाएं हैं, जिसकी पूर्ति हेतु वो गुरु के पास आया है. अब नेक्स्ट लेवल का विश्लेषण करते हैं कि अभी वो व्यवसायत्मिक बुद्धि है उसके पास. व्हाट डज अ डिवोटी हैविंग अ फिक्स्ड इंटेलिजेंस डू? सो नाउ लेट अस नाउ सी. अब यहाँ पे एक वर्ड है फिक्स्ड इंटेलिजेंस, और कई बार हमने भगवत गीता में देखा है फिक्स्ड माइंड. So now let us try to understand, before coming into this analysis, the difference. See, it is not a very big difference. The mind and the intelligence are practically almost the same, especially when they are corrupted. But what is the fine difference between these two? We must understand in regard to this shloka. So सबसे पहली बात, ये जो हमारे जो भगवान कहते हैं कि fixed mind, and he is talking about that. So there the talk is more about vyavasayatmika buddhi. The mention of vyavasayatmika buddhi comes more in chapter number 2 from the सांख्य योगा, जहां पे खत्म होता है 29th वर्स के आगे. उसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट होता है उसको बुद्धि योगा कहते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली कर्म योगा ओनली. So this is translated as even devotional service, and we get the connection in chapter 10 only. ददामी बुद्धि योगम, तम पे ही हमें इस बुद्धि योगा और एक्चुअल जो बुद्धि योगा जो भक्ति योगा है उसके बीच में संबंध बाद में ही समझ में आता है, लेकिन इस समय वो एक्चुअली कर्म योगा ही है, सकाम या निष्काम जो भी है, बट इट इज बुद्धि योगा इज दैट. लेकिन जब हम बात करते हैं मन को कंट्रोल करने की, तब हम चैप्टर 6 पे बात करते हैं जो ध्यान योग की बात कर रहे हैं. तो ऑलरेडी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इंटेलिजेंस, व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू इज हेल्प यू इन डूइंग कर्म योगा, एंड फिक्स्ड माइंड इज हेल्पिंग यू इन मेडिटेशन. ध्यान योग में आपकी सहायता करता है जब आपका मन चंचल नहीं है, स्थित हो जाता है एक पर्टिकुलर उद्देश्य में. लेकिन बुद्धि जब स्थित हो जाती है एक पर्टिकुलर उद्देश्य में, तो उसका काम क्या है और मन का क्या काम है, इसका हल्का सा एक विश्लेषण करेंगे. फिर हम जाएंगे कि एक जो भक्त है जिसको ये प्रदान हुआ है इस श्लोक द्वारा, जो नारद जी को, वो उसके बाद करते क्या है, आगे के श्लोकों में भी यही बताया जाएगा. तो मैं वो आई वोंट स्टील द थंडर एज दे से. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस. अब मन का क्या काम है? तो मन क्या करता है, वो प्राचीन जो अनुभव हैं और उन अनुभवों को दोहराने का जो अवसर है उसको प्रोजेक्ट करता है चेतना पर. सो द माइंड प्रोजेक्ट्स द पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्टोर्ड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द स्टोर हाउस ऑफ रिच एक्सपीरियंसेस ऑन टू द कॉन्शियसनेस. इट डज अनदर थिंग, एक और चीज करता है, वो काल्पनिक जो अनुभव हैं उनको भी प्रोजेक्ट करता है. मतलब वो बताता है कि ऐसा अनुभव को दोहराने का या पहली बार उसको एंजॉय करने का अवसर मैं आपको दे रहा हूं, इसके लिए आप योजना बनाइए. ऐसा वो एक प्रस्ताव लेकर बुद्धि के सामने जाता है. सो दिस इज नाउ, बट व्हाट डज अ फिक्स्ड माइंड डू? अ फिक्स्ड माइंड इज गिविंग the past experiences as well as imaginative experiences to the consciousness, so that the consciousness can be in a meditative state. तो ध्यान मय होने के लिए ये चेतना को एक अवसर प्रदान कर रहा है. किसके द्वारा? अगर माइंड स्थित है तो, अपना मन अगर स्थित है, लेकिन अगर माइंड एजिटेटेड है, उथल पुथल कर रहा है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो वो इंटेलिजेंस को प्रस्ताव पर प्रस्ताव पर प्रस्ताव दिया जाएगा एट 50 हर्ट्ज, मतलब 50 प्रस्ताव प्रति क्षण, और इस पर जो इंटेलिजेंस तो बौखला जाएगा और प्राय कुछ भी नहीं करेगा. सो दिस इज द कोलैप्स ऑफ अ पर्सन फॉलोइंग. कहते हैं कि जो मन की सुनता है वो मंकी हो जाता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द माइंड. सो द माइंड विच इज फिक्स्ड कैन गिव यू अ मेडिटेटिव स्टेट.
What does the intelligence do? The intelligence is processing, it is planning. अब जब इंटेलिजेंस जब फिक्स हो जाता है, देन इट रीचेस अ प्लानिंग स्टेट, वो योजनात्मक स्थिति पर पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि एक भक्त जिसको व्यवसायत्मिका बुद्धि प्राप्त हुई है भगवान की कृपा से, वो उस व्यवसायत्मिका बुद्धि को किस कार्य पे संलग्न करता है, वो योजना कौन सी बनाता है। सो दिस इज नाउ द क्वेश्चन, दिस इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द रिमेनिंग time that we have. So now let's see. I will just give a particular, I'm going to short circuit now. तो अब इसमें दो तरह के प्लान बनाता है। एक ये प्लान बनाता है कि मैं कैसे अपने जीवन का व्यवस्थापन कैसे करूं कि मुझे भगवान का स्मरण पल पल आफ्टर पल मिलता रहे। और दूसरा वो ये भी प्लान बनाता है कि मुझे जो गुरु द्वारा जो उपदेश मिले हैं उनको कैसे मैं लागू करूं, मतलब हाउ डू आई फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। सो देयर वाज चैतन्य दिस थिंग पृथ्वी ते आचे यत नदराग्री ग्राम एंड सर्वत्र प्रचार होइबे प्रचार होइबे मरो नाम। सो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन था ये एक्चुअली इट वाज अ भविष्यवाणी बाय चैतन्य महाप्रभु। बट इसमें ये कहा गया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा जो नाम है हर नगर और हर ग्राम पर इसका प्रचार होगा। हर नगर और हर ग्राम का क्या मतलब है? हर नगर और हर ग्राम। लेकिन कुछ लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया दोबारा, उसका दूसरा मीनिंग निकाला। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु इंडिया में थे तो हर नगर और हर ग्राम, तो उन्होंने इंडिया के लिए बोला होगा कि इंडिया के हर नगर और हर ग्राम पे। और कुछ लोगों ने तो शायद बोल दिया वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक। लेकिन प्रभुपाद ने अपना इंटेलिजेंस इस इंस्ट्रक्शन को, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको दिए, दो इंस्ट्रक्शन दिए। पहला ये कि आप प्रचार कीजिए चैतन्य महाप्रभु का जो भी उपदेश है वेस्टर्न कंट्रीज में, उसका उसको उस इंस्ट्रक्शन को पालन करने उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी। और फिर उन्होंने कहा व्हेन इफ यू एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, तो उन्होंने उसके लिए बीबीटी की स्थापना कर दी। दोनों लीगली अलग बॉडीज हैं लेकिन जीबीसी ही दोनों को ये कर रहा है। लेकिन उन्होंने दोनों इंस्ट्रक्शंस जो भी मिले उन दोनों के लिए उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको ये नहीं कहा कि आपको कैसे प्रचार करना है, उन्होंने बस बोल दिया कि आपको चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश, उनके जो कथन है उसको पश्चिम देश में, पाश्चात्य देश में, वहां पे आपको ये इसको फैलाना है। इतना ही कहा। ये नहीं कहा कि आपको जलदूता में जाना है, ये नहीं कहा कि आपको टॉम्किन स्क्वायर में आपको भजन करना है, कुछ नहीं बताया। तो he did not use his intelligence to reinterpret the instructions of his spiritual master, he used it to execute the instructions of the spiritual master. Do not surrender your intelligence, surrender with intelligence का यही अर्थ है। So actually I had two more points in case there was time, but I think I kind of finished it. So now Prabhupada's agenda was not कि मैं भगवान का कौन सा पार्षद बनूंगा, क्या मैं साखी रस में जाऊंगा, क्या मैं माधुर्य रस में जाऊंगा, ये उनका टेंशन था ही नहीं। His only purpose was to fulfill the desire and instructions of his spiritual master. Automatically he will get to be an associate in the spiritual world. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।